Friends, your 12th exam has been going on, but you should go through one step that CUET exam 2025 is also after the exam. Friend, first of all, we will know about the conducting agency and then we will know about the main steps for apply the CUET exam 2025. Friend, first of all, the National Testing Agency NTA has been assigned the task of conducting the Central University Entrance Test CUET for undergraduate UG programs 2025, and we said common university entrance test also. For admission to different programs of the participating universities will provide a single window opportunity to the students to seek admission in these participating universities institute across the country. Friends, Common University Entrance Test 2025 involved all subjects like humanities, like science, like commerce, like engineering, and many more. Friends, we will know all things, all necessary things about the CUET exam 2025 in Hindi and English also. Friends, most common things are, first of all, CUET exam will be held in 13 languages and 23 domain special subjects. Then student can select maximum 5 subjects, right? Then the exam will be in CBT mode. In every paper there will be 60 minutes maximized, and the every part of paper will be differentiating questions in every subject. Then in 2025 CUET UG exam there is no descriptive questions, and maximum score is 800 marks. If student give the right answer, choose the right answer, he will take 5 marks, and there is a negative marking also, and for wrong answer there will be deduction of 1 mark. And what is the eligibility? Friends, the eligibility is 12th passed students and the students who are going to present in this exam, CBSE 2025 exam. And now we will know about the process of applying the CUET exam 2025. First of all, the form will be online and the prompt classes has been given the screenshot and the letter of NTA in our page at Param Classes channel, and the exam fee will be filled in many ways, like debit credit cards, like net banking, or bank challan from SBI bank only. Friends, now we will know all things in Hindi also.
दोस्तों सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम के बारे में, यदि जिसे कहते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अन्य जो भी यूनिवर्सिटीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है या एफिलिएटेड कॉलेजेस है, उन सभी में यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए सीयूटी देना कंपलसरी है, अनिवार्य है। सीयूटी 2025 को भारत के बाहर 26 सहित 380 शहरों में लगभग 13 भाषाओं में 8 मई 2025 से 1 जून 2025 तक जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। ये अभी फिक्स्ड नहीं है, और यदि आप जानना चाहते हैं तो हम आपको टाइम पे इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। अब मेन बातें क्या है सीयूटी के एग्जाम, वो जानना जरूरी है। पहला तो है सीबीटी मोड में होगा एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें सब्जेक्ट की संख्या घटाकर, जो 63 थी वो घटाकर 37 कर दी गई है। कितनी? 37। अब है महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, डेट्स क्या है, वो जान लेते हैं। पहली तो है आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना। उसकी है 1 मार्च से 22 मार्च तक 2025 तक रात को 11:50 तक 22 मार्च को आप ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। देन पेमेंट कैसे होगा? तो दोस्तों पेमेंट होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इन सब के माध्यम से। और 23 मार्च 2025 को रात्रि 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शहर की घोषणा, ये जब आप ऑनलाइन कर देंगे अप्लाई, उसके बाद जो एग्जाम होने वाला है उससे पहले आपके मेल के ऊपर ये आपको बता दिया जाता है। देन सीयूटी परीक्षा तिथि क्या है? ये जो एज्यूम्ड है और ये अभी तक 90% है कि यही रहेगी, ये है 8 मई 2025 से लेकर है 1 जून 2025 तक रहेगी। उसके बाद है परिणाम कब आते हैं? दोस्तों एग्जाम के जस्ट 1 महीने के भीतर सीयूटी एग्जाम के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। आवेदन पत्र में सुधार कब तक हो सकता है? हमने आवेदन पत्र तो भर दिया, लेकिन किसी वजह से उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है, गलतियां रह गई, तो हम कैसे सुधार सकते हैं? तो दोस्तों वो है 24 मार्च से 26 मार्च तक रात्रि 11:50 तक हम कर सकते हैं। अब और है कि और क्या मेन बातें हैं इसकी, वो भी जान लेते हैं। अब है कि सीयूटी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है ये, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है यूनिवर्सिटी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसका संचालन कौन करती है, एग्जाम कौन करवाता है? वो है एनटीए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देन परीक्षा का स्तर क्या है? अपर स्तर है और नेशनल वाइड है। परीक्षा का तरीका सीबीटी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। अवधि कितनी है? जैसा कि हमने बताया इंग्लिश में 60 मिनट्स मैक्सिमम मिलेंगे आपको। कितनी बार होता है? ड्यूरेशन ईयर में 1 टाइम होता है। परीक्षा का पैटर्न क्या है? इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मतलब इसमें आपको वो नहीं है, बड़े क्वेश्चन नहीं है, न आपको वो ऐसे टाइप से है, ना शॉर्ट है, आपको केवल एमसीक्यूज होंगे आपके पास, ठीक है। अब लैंग्वेज कौन कौन सी होगी ये भी जानना है, तो जान लेते हैं। असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, उर्दू, उड़िया और पंजाबी, ये तो है इंडियन लैंग्वेज हो गई। अब धारा IB20 भाषाएं कौन कौन सी है? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, फारसी, अरबी, इतावली, सिंधी। उसके बाद है कश्मीरी भी है इसमें,
कोंकणी भी है, बोडो जो भाषा है वो भी है, डोगरी भी है, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बती, जापानी, रूसी, चीनी और सबसे बड़ी है हमारी भाषा संस्कृत। इनमें भी पेपर आएंगे। ये लैंग्वेज रहेगी आपकी, बाइलिंगुअल रहेंगे। कुल सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों? 61 सब्जेक्ट्स है, जिसमें 33 तो लैंग्वेज आधारित होंगे, 27 जो है स्पेशल डोमेन वाले होंगे, और एक है पेपर है वो सामान्य जनरल नॉलेज का होगा। और आधिकारिक वेबसाइट जैसा कि आपको पता ही है CUET.NTA.nic.in है। अब बात आती है आपकी पैटर्न क्या रहेगा इसका एग्जाम का। तो दोस्तों पैटर्न रहेगा 13 भाषाएं हैं। अनुभाग फर्स्ट ए में 13 भाषाएं, प्रश्नों की संख्या 50, प्रत्येक भाषा के लिए 45 मिनट मिलेंगे। यही सेम रहेगा अनुभाग IB 20 इस लैंग्वेज रहेगी और सबके लिए सेम है। खंड सेकंड में 27 डोमेन विशिष्ट सब्जेक्ट रहेंगे और उससे 50 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स वही है। खंड थर्ड है जो जीके का है, वह 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स मिलेंगे उसके लिए। लेकिन ध्यान दें, गणित मतलब मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, बायो, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स, इनका अभ्यास सामान्य टेस्ट को छोड़कर प्रत्येक टेस्ट पेपर 45 मिनट का होगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आपको जाते जाते बता देते हैं कि मार्क्स कैसे आएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि पात्रता क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो मार्क्स के हिसाब से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, किसी भी गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कटेगा, 1 अंक कटेगा। अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई निशान नहीं है, ठीक है। यदि एक से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं तो किसी भी सही विकल्प पर निशान लगाने वाले को 5 अंक दिए जाएंगे। यदि सभी विकल्प सही पाए जाते हैं तो प्रश्न का उत्तर देने वाले सभी लोगों को 5 अंक दिए जाएंगे। हमें इसीलिए क्या है, हर क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। जो भी हमें लगे कि नहीं थोड़ा सा ये सही है तो अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि कोई विकल्प सही नहीं पाया गया तो हटाए गए प्रश्न का प्रयास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को 5 अंक दिए जाएंगे। अब बात आती है कि हमारी बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी बता देते हैं आपको। जिन छात्रों ने अपनी कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा पूरी कर ली है वे CUET एग्जाम 2025 की परीक्षा के लिए आवेदन के लिए पात्र है। पहली बात तो ये। उसके है कक्षा 12 के वे छात्र जिन्हें अभी बोर्ड परीक्षा देनी है वे भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि तब तक की एग्जाम चलते रहेंगे। जैसे कि CBSE बोर्ड एग्जाम है 4 अप्रैल तक है, तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद CUET प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थियों को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पहली बात तो ये। उसके बाद है विशिष्ट आयु सीमा कुछ भी नहीं है। हालांकि उम्मीदवारों को उस विश्वविद्यालय, संस्थान और संगठन द्वारा निर्धारित किसी भी आयु मापदंड या मानदंड को पूरा करना होगा जिसमें कि आवेदन करना चाहते हैं। अब है कि हम पंजीकरण कैसे करें, हम अप्लाई कैसे करें। दोस्तों ऑनलाइन होगी, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है 1 मार्च से। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको पूरा करना होगा, और CUET 2025 के लिए पंजीकरण खुल चुका है, वेबसाइट स्टार्ट हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चरण है वो आपको देखने, स्टेप क्या क्या है। मेन चीज ये है, पहला तो है अपना प्रोफाइल भरना है जिसमें नाम, जन्म तिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि प्रदान करके पंजीकरण करें। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें कि ये चीजें, इनमें से कुछ चीजें हैं वो बाद में एडिट नहीं होती है, लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, लाइक योर फोन नंबर। ये मोबाइल नंबर जो है इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो भी एग्जाम की जानकारी होगी वो इसी पे आपको फॉरवर्ड की जाएगी। एक स्ट्रिक्ट सॉलिड पासवर्ड बनाना है और अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर भी आपका सत्यापित होता है, वो मतलब सेटिस्फाइड जब हो जाता है तभी होता है वो। उसके बाद आवेदन संख्या और पूर्व निर्मित पासवर्ड का उपयोग करके आवेदन पत्र भरे, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे। उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक आपकी स्कैन की हुई फोटो और हस्ताक्षर मतलब साइन आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, फोर्थ जो स्टेप है वो महत्वपूर्ण है,
आपको ध्यान से करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम या यूपीआई के माध्यम से आपको पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट करते समय फोर्जरी से सावधान रहे। दोस्तों, कोई भी मैसेज आता है, कोई किसी का जवाब नहीं देना है। हमें हमारे मोबाइल से या किसी से पेमेंट करने तो ध्यान रखना है कि हमें चौकस रह के काम करना है। अब है जो हमें जानना है वो है शुल्क क्या है। अब बच्चों के दिमाग में ये होता है कि कितनी फीस लगेगी, तो दोस्तों बता देते हैं। फीस के लिए आपको सामान्य जो है, अनरिजर्व्ड है, अधिकतम 3 सब्जेक्ट लेगा तो 1000 रुपए लगेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त सब्जेक्ट, मतलब बच्चा 5 सब्जेक्ट में कर सकता है, तो अतिरिक्त सब्जेक्ट का 400 रुपए पर सब्जेक्ट लगेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद ओबीसी के लिए, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 900 है, और उसके लिए प्रत्येक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 375 प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए रहेगा। इसके बाद अलावा एससी, एसटी, विकलांग, दिव्यांग जिसको बोलते हैं तृतीय लिंग, मतलब जो है तृतीय लिंग है, उसके लिए 800 रुपीज है अधिकतम 3 सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद 350 प्रत्येक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए फीस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। उसके बाद आप भारत से बाहर के जो सेंटर हैं उनमें कौन कौन क्या फीस लगेगी दोस्तों? 4500 रुपए 3 सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा यदि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 1800 रुपए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए भी लगेंगे, अलग सब्जेक्ट के। अब है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जाते जाते जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट्स सब। पहला तो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, और आपका कौन सी श्रेणी में आते हैं। यदि जनरल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एससी, एसटी, ओबीसी या आप हैंडीकैप्ड में तो आपको चाहिएगा। आपकी फोटो एंड सिग्नेचर स्कैन किए हुए, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक या राशन कार्ड वो स्कैन किया हुआ, और आवेदन शुल्क भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का जो पर्टिकुलर है वो आपको सारी चीजें एक साथ लेकर फिर आपको ऑनलाइन करने के लिए बैठना चाहिए, ताकि आप एक जगह बार बार आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े। उसके बाद है पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो दोस्तों भाषा संबंधी पठन सामग्री जो है वो है समझ है, विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों पर आधारित होगा, जो कि तथ्यात्मक, साहित्यिक और कथात्मक होगा। और इसके अलावा साहित्यिक योग्यता और शब्दावली के माध्यम से आपका चयन होगा। डोमेन विषय केवल कक्षा 12th के पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपका होगा। उसके बाद सामान्य परीक्षण में क्या आएगा, अब ये महत्वपूर्ण है। आपका जो लास्ट पार्ट है इसका सीयूटी एग्जाम के बारे में वो ये है कि आपको जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, आपका डेली लाइफ में आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सोशल मीडिया पर जो काम की चीजें देखते हैं, जैसे कि जीके है, समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स है, सामान्य मानसिक क्षमता है, आपकी संख्यात्मक क्षमता है, मतलब न्यूमेरिक है ना, वो मात्रात्मक, ये सारी अंक गणित, बीज गणित, ज्योमेट्री, ये सारे इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये है पूरा फॉर्म या फॉर्मेट सीयूटी एग्जाम के लिए, या स्ट्रक्चर ऑफ सीयूटी एग्जाम हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको और जो कुछ भी जानना है सीयूटी के बारे में, आप बेझिझक, बेसंकोच, निसंकोच होकर आप जो हमारा जो ये है कमेंट बॉक्स उसमें आप लिख सकते हैं, ताकि हम आपको इससे जुड़ी और बातें बता सके। वैसे तो हम समय समय पर आपको सीयूटी एग्जाम के लिए अवगत करवाते रहेंगे, लेकिन आप क्या जानना चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम आपको उसका जवाब दे सके। दोस्तों कल मिलते हैं एक नए लेकिन एक बहुत ही अच्छे मजेदार सब्जेक्ट के साथ, एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहेगा, जानते रहेगा सीयूटी एग्जाम क्या है। दोस्तों डेट नहीं निकल जाए, क्योंकि डेट हमने जो बता दी है उससे आगे एक दिन भी नहीं होगा दोस्तों। तब तक आपको ये अप्लाई कर देना है। धन्यवाद दोस्तों।